तो हम लोगों ने देखा, वी फिनिश द प्रेयर्स ऑफ भीष्म देव, है ना। लास्ट वर्स भीष्म देव की प्रेयर्स का हम लोगों ने लास्ट वीक नहीं, मंडे को करा था। और अब सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं हम लोग ना। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वासोपारमत्। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, है ना। मनो मतलब मन से, वाग मतलब आवाज से, दृष्टि मतलब विजन से, और वृत्ति मतलब एक्शन से, है ना। आत्म मा और let's read the translation. Suta Goswami, who wants to read the translation? I want someone else to read the. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बेटा, आप रीड करो ट्रांसलेशन। Suta Goswami said, thus Bhishma Deva merged himself in the super soul, Lord Shri Krishna, the supreme personality of Godhead, with his mind, speech, sight, and actions, and thus he became silent. The stage attained by Bhishma Deva while No, no, quitting, what is this? and his breathing stopped. Yeah, now The, continue. stage attained by Bhishma Deva while quitting his material body is called Nirvikalpa Samadhi because he merged into his self into thinking of the Lord and his mind into remembering his different activities. He chanted the glories of the Lord, and by his sight he began to see the Lord personally present before him. And thus all his activities became concentrated upon the Lord without deviation. This is the highest stage of perfection, and it is possible for everyone to attain this stage of practice by devotional service. The devotional service of the Lord consists of 9 principles of service activities, and they are 1. Hearing, 2. Chanting, 3. Remembering, 4. Serving the lotus feet, 5. Worshipping, 6. Praying, 7. Executing the orders, 9. Fraternizing, and 8. Fraternizing, and 9. Fully surrendering. Any one of them or all of them are equally competent to award the desired result, but they require to be practiced persistently under the guidance of an expert devotee of the Lord. The first item, hearing, is the most important item of all. Therefore, hearing the Bhagavad Gita and later on Srimad Bhagavatam is essential for the serious candidate who wants to attain the stage of Bhishma Deva at the end. The unique situation at Bhishma Deva's time of death can be attained even though Lord Krishna may not be personally present. His words of the Bhagavad Gita or those of Srimad Bhagavatam are identical with the Lord. They are sound incarnations of the Lord, and one can fully utilize them to be entitled to attain the stage of Sri Bhishma Deva, who was one of the 8 Vasus. Every man or animal must die at a certain stage of life, but one who dies like Bhishma Deva attains perfection, and one who dies most by the law of nature dies like an animal. That is the difference between a man and an animal. The human form of life is especially meant for dying like Bhishma Deva. Hare Krishna. Thank you, beta. Beautiful. What an amazing purport. You know, Suta Goswami finally is saying this is how he stopped breathing. This was the last thing, he spoke about Bhishma Dev in here. You know, so the thing is manasa. So what he did is he used his mano, that is his mind, his vag, matlab his speech, his drishti, matlab his vision, and vritti, his action, all in the service of Krishna, and then he became silent. What a glorious death.
भगवत गीता में कहते हैं अंत काले चवामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में भगवान को याद करता है ना, उसको डेफिनेटली ही विल गो बैक टू हिम, डेफिनेटली भगवान कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट ए ग्लोरियस डेथ, बिकॉज ही यूज्ड हिज माइंड, स्पीच, साइट एंड एक्शन, ऑल फोर ऑफ देम। एंड शिला प्रभुपाद कॉल्स इट अ निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प, विकल्प का मतलब होता है एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज समाधि है ना। ही मर्ज्ड, so the nirvikalp samadhi, there is a we will talk about nirvikalp samadhi, है ना। Srila Prabhupada says only who gets the nirvikalp samadhi, only भक्त, है ना, जो भक्त होते हैं वही इसमें जाते हैं, है ना। तो देर आर, हम लोग ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस, देर आर थ्री लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉर्ड, है ना। ब्रह्मेति, परमात्मेति एंड भगवानिति। फर्स्ट इज ब्रह्मा ब्रह्मन रियलाइजेशन, सेकंड इज परमात्मा रियलाइजेशन, थर्ड इज भगवान रियलाइजेशन। ये जो तीन रियलाइजेशन है, इसमें जो सब भगवान रियलाइजेशन को सबसे ऊंचा माना जाता है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द लॉर्ड, है ना, अब कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। नाउ जो, और उसमें भी जो भक्त होते हैं ना, उनमें भी चार तरह की चीजों, चार चीजें भक्त करते हैं, नाम, गुण और रूप और लीला, है ना। इन चार चीजें जो होती है ना, ये चार चीजों से, अगर आप नाम, गुण और रूप, ये तो तीन चीजें होती हैं। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, सिर्फ चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है, भगवान के गुणों के बारे में सोच रहे हो, है ना, तो एक वो हो गया। और तीसरा हो गया भगवान के रूप को देख रहे हो या उनके बारे में सोच रहे हो। लेकिन जब लीला होती है, लीला में क्या होता है, भगवान का नाम भी होता है, गुण भी होता है, रूप भी होता है, इसलिए उसको हाईएस्ट बोला जाता है। एक्चुअली नाम, गुण और रूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो लीला होती है उसमें तीनों चीजें सम्मिलित होती हैं, इसलिए कहते हैं उसमें भी चार चीजें। जो सबसे हाईएस्ट होती है वो क्या होती है, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट लीला। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, भीष्म देव ने अपने पूरी स्तुति में ही स्पोक अबाउट कि उन्होंने अर्जुन के बारे में बात करी, कृष्ण के बारे में बात करी, कृष्ण युद्ध में कैसे दिख रहे थे वो भी बात करी, फिर उन्होंने भगवान की रास लीला के बारे में बात करी। तो कुल मिला के उन्होंने लीला लीला की बात करके देन ही पास्ड अवे, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड वेरी वेरी ग्लोरियस। तो हम लोग जब भक्ति में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मनस, काया, वाचा और मनसा। काया, वाचा और मनसा, ये तो तीन चीजें होगी है। और यहाँ पर क्या है, माइंड, स्पीच और साइट। इनमें क्या, इसमें से क्या चीज है जो दूसरे वाले में मिसिंग है, इसमें कौन सी चीज मिसिंग है, काया, मनसा और वाचा। जैसे इसमें चार चीजें बोली है ना, माइंड, स्पीच, साइट एंड कर्म एक्ट। ना। हाँ, काया, वाचा, कर्म ना प्रभु जी, कर्म। नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे एक एक हम बोलते हैं काया, वाचा और मनसा, है ना। काया, वाचा, मनसा, कर्म तो है ही, ठीक है। काया, वाचा और मनसा। काया का क्या मतलब होता है? का मीन्स बॉडी। विथ योर यस, बॉडी। यस, दैट इज करेक्ट। अब काया का इसमें कहाँ बात आ रही है, साइट एंड एक्शन, ठीक है, काया से आ रही है साइट एंड एक्शन। मनसा इज माइंड और वाचा इज स्पीच, है ना। So, what do we need to do? According to this verse, what do we need to do is we need to, शिला प्रभुपाद यहाँ पर बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस क्या होती है, 9 प्रोसेसेस होते हैं। स्मरणम, स्मरणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, स्मरणम, माउस इज नॉट वर्किंग, व्हाट्स हैपनिंग, गिव मी 1 second। स्मरणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये क्या है, ये 9 जो चैंटिंग के प्रोसेस है, मतलब 9 भक्ति के जो अंग हैं, इसमें किसी भी एक अंग से यू कैन एक्ट, दे आर ऑल कॉम्पिटेंट। लेकिन अ, उसका, इसमें कंडीशन क्या है, इसी कंडीशन है, यू हैव टू प्रैक्टिस अंडर अ गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट डिवोटी। सो वी आर ट्राइंग टू लर्न दिस विद एन एक्सपर्ट डिवोटी एज शिला प्रभुपाद, है ना। लेकिन इसमें से भी इन नौ नौ में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होती है फर्स्ट आइटम, हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ऑल। नेक्टर ऑफ डिवोशन में क्लियरली बताया, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम लोग सुनते हैं
जैसे हम लोग भगवत गीता सुनेंगे, सुन ली हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने भगवत गीता फिनिश कर ली है, उसके बाद हम लोग श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम इज लाइक ए, इट्स फॉर वेरी सीरियस पीपल। तभी हम श्रीमद् भागवतम में हमारा जो कंटेंट होता है थोड़ा सा डीप होता है, और इसलिए होता है क्योंकि नाउ इट्स टाइम हम लोगों को, इफ वी आर नॉट सीरियस अबाउट दिस, दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। एक आदमी अगर ओलंपिक्स, जैसे ओलंपिक्स अब कल से शुरू हो जाएंगे शायद, ओलंपिक्स है ना, आई थिंक पेरिस में। ओलंपिक्स के लिए लोग 10-10 साल प्रैक्टिस करते हैं। आज बच्चा 5 साल का होता है तब से ओलंपिक्स की तैयारी में शुरू हो जाता है वो, है ना। और वो क्या है, एक 4 साल में एक ओलंपिक होता है, 3 साल में, 4 साल में। और वो एक ओलंपिक होता है, और उसमें से हम कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल के नाम हमें याद है। हर 4 साल में, जब से शुरू है ओलंपिक तब से अभी तक कितने सारे गोल्ड मेडल्स दे चुके होंगे वो, किसी को नहीं पता है, हजारों, लाख, हजारों, है ना। लेकिन उसके बावजूद लोग 10-10, 15-15 साल निकाल देते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ओलंपिक्स की। ठीक है। और जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द परफेक्शन ऑफ द होल इटर्निटी इन मटेरियल वर्ल्ड। और उसके लिए अगर हम लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, एंड देन वी थिंक दैट ओलंपिक इज बेटर देन दिस, देन इट इज स्टूपिड, है ना। सो जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, दे अंडरस्टैंड कि नहीं यार ठीक है, समय कम है, वट एवर इट इज वी नीड टू अटेन द हाइएस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुप्रीम ट्रुथ, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ मितुल प्रभु, आपका क्वेश्चन है। प्रभु जी, ये जो हियरिंग की बात होती है, तो हियरिंग यानी इसका मतलब ऐसा है कि जो लेक्चर सुने सिर्फ उसको हियरिंग बोलते हैं, या चैंटिंग करे तो चैंटिंग बोल के करे, या भगवत गीता रीड करे, भागवतम रीड करे तो लाउडली रीड करते हैं तो उससे जो हियरिंग होती है उसको भी हियरिंग काउंट होता है, या सिर्फ हियरिंग इन द सेंस ये जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं उसी को? नहीं नहीं, सो नहीं, गुड क्वेश्चन प्रभु, गुड क्वेश्चन। हियरिंग का मतलब होता है हर चीज। फॉर एग्जाम्पल, चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग वी हैव टू स्पीक इन अ वे कि हमारे कान में जाए, हाँ, मुंह से वो निकले और कान में जाए। ठीक है, मंत्रा कान में जाना चाहिए, तो इसको कहते हैं हम्म। हियरिंग, है ना। और वो भी हियरिंग है, चैंटिंग करना भी हियरिंग है, हम लेक्चर सुनना भी हियरिंग है, और कीर्तन करना भी हियरिंग है ओह, ना। ओके। तो सारी की सारी चीजें, सब चीजों को हियरिंग बोला जाता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से होती है, somebody has told us, hey ब्रिजेश प्रभु, डू दिस, यू शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, ये जो हमारे हियरिंग करी है। तो भी भगवत गीता में भी अभी जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा, तत्सुणु, अरे वो तो 6 चैप्टर में आएगा। तत्सुणु, भगवान भी स्टार्ट कैसे करते हैं, आप सुनो, है ना, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू emphasize on the most important limb of bhakti which is called स्मर हियरिंग, है ना। श्रवणम, श्रवणम से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। अगर श्रवणम नहीं होगी तो रिमेम्बरिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने सुना नहीं है भगवान के बारे में तो यू कांट रिमेम्बर इट, यू कांट थिंक अबाउट इट कि हाँ यार आई एम रिमेम्बरिंग गॉड्स पास टाइम, नो यू कांट, है ना। इसी तरीके से बाकी सारी चीजें जब तक आप श्रवण नहीं करोगे, यू कैन नॉट डू एनी ऑफ द अदर अदर लिम्स, क्योंकि वर्शिप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इफ यू हैवंट हर्ड कि कैसे करनी है, यू वोंट बी एबल टू डू इट। प्रेइंग नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्रे। ठीक है। एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स, भगवान के ऑर्डर्स नहीं कर पाओगे, दास से रस कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि भगवान को क्या चाहिए, जब तक आपने सुना ही नहीं है भगवान की बात। तो इसीलिए हीरिंग को बहुत हाईली वो दिया जाता है। पर चैंटिंग, कीर्तन, और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता लेक्चर, इन सब को एवरीथिंग कंप्राइजेज ऑफ हीरिंग। तो मुझे कीर्तन को, हाँ, कीर्तन में सिर्फ म्यूजिक नहीं होता है, हम चैंट भी यानी हाँ, हम भगवान का नाम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके दैट्स ओके करेक्ट, दैट्स ओके। करेक्ट, क्योंकि वो हम लोग, वो हमारा कॉन्शियसनेस एक्चुअली म्यूजिक, म्यूजिक मेक्स इट पैलेटेबल, म्यूजिक मेक्स अस लिसन टू इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा ना, कीर्तन में बैठना आसान है, चैंटिंग में बैठना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई एवरी डे वी डू इट फॉर 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। 2 घंटे रोज सुबह बैठ के हम प्रैक्टिस करते हैं। आई बीन डूइंग इट फॉर 9 years, लेकिन आई कैन टेल यू दैट आई इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग से ज्यादा मुश्किल कोई भी काम नहीं है, बिकॉज यू आर विद योर सेल्फ, यू आर विद योर ओन थॉट्स। कीर्तन में क्या होता है, बहुत सारे लोग गा रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशन होती है, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का भाव आ रहा है, तो वो क्या होता है, वी बाउंस ऑन दैट एनर्जी। लेकिन जब व्हेन वी आर चैंटिंग ऑन आवर ओन, देन इट्स जस्ट अस एंड आवर थॉट्स। कितने डेंजरस थॉट्स होते हैं, आई मीन आई डोंट हैव टू टेल यू,
है ना. सो दैट्स व्हाई हियरिंग इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि लेटर हाँ फिर कह रहे हैं कि the unique situation at Bhishmadeva time of death can be attained even though Lord Krishna may not be personally present. Why? Because his words of Bhagavad Gita and Bhagavata are identical. If we can hear that at the time of death or we are surrounded by devotees, it will be fine. है ना. और ये क्या है, ये श्रीमद् भागवतम भगवद गीता क्या है, दे साउंड इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड. And they fully, if we one can fully utilize them to be entitled to attain the stage of Bhishma Deva, who was one of the 8 Vasus. I'm pretty sure नाम से कितने प्रभु ने वसुस के बारे में बताया था ना कि हाउ भीष्म देव कम, मतलब लास्ट बर्थ में भीष्म देव कौन थे. आई थिंक सम अदर मितुल प्रभु आपने बताया था, निशान नाम से कितने प्रभु ने. हाँ नहीं, नाम संकीर्तन प्रभु ने बताया था एक हाँ बार। ठीक है. तो उसमें से जो भीष्मदेव थे वन ऑफ द 8 वसुस थे. ठीक है. एवरी मैन और एनिमल मस्ट डाइस, हमको सबको मरना है ना. बट भीष्मदेव की तरह अगर हम लोगों को परफेक्शन लेना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भीष्मदेव जैसी चीजें करनी पड़ेगी. जानवर क्या करते हैं, दे डाई विद द फोर्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल. सो हमारी जो ह्यूमन बर्थ है, इट इज especially meant for dying like Bhishma Deva, है ना. So how to, अब जैसे भीष्म देव को एक बेनेडिक्शन मिला था, ठीक है, कि क्या बेनेडिक्शन था भीष्म देव के पास, क्या उनका वरदान क्या था, किसी को पता है. व्हाट वाज हिज बेनेडिक्शन. इच्छा मृत्यु प्रभु जी। इच्छा मृत्यु, यस. आप सोचो कि, और उनको दिया था शांतनु ने, उनके फादर ने. ठीक है, शांतनु गेव इच्छा मृत्यु, है ना. और शांतनु कौन थे, शांतनु वो पर्सन थे. आप सोचो हाउ अमेजिंग इज आवर स्क्रिप्चर्स. जो पर्सन लाइक हम लोग क्या क्या बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन शांतनु वाज, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द, ही वाज हिज नेम आई थिंक महाभीषा, है ना. ही वाज महाभीषा कर, पिछले जन्म में शांतनु कौन थे, महाभीषा थे. वो इतने जबरदस्त डिवोटी थे कि वो ही वेंट टू ऑल द वे टू ब्रह्मलोका, है ना. एंड देन ऑब्वियसली ही फॉल डाउन बिकॉज गंगा देवी आई वहां पर उनका, है ना. एंड ही वाज लुकिंग एट हर लस्टफुली. तो फिर उनको बोला, नहीं यू, अगर आप में ये सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हैं तो यू कांट बी हेयर, ब्रह्मलोक में नहीं आप आ सकते, सत्य लोग जिसको कहते हैं. तो उनको बोला, उनको वापस यहाँ भेज दिया. देन ही वाज बोर्न एज शांतनु. तो शांतनु ने उनको वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का. आप सोचो, जिसने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है उसकी खुद की, he does not have control on his own senses. Even then he was capable of giving that vardhan, you know. So that is the glorification of not Shantanu, that is the glorification of Bhishma Dev, because he deserved that kind of a benediction. Now what happens is, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल उनको बोलते थे कि शिला प्रभुपाद, ये इतना मुश्किल है यार, ये टेम्पल का मैनेजमेंट इतना मुश्किल है यार, हजारों हजारों लाखों अरबों रुपए की कंपनियां चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं, उसमें कोई पंगा नहीं होता है. हमारी इसमें क्यों पंगा होता है इतना, कि यार टेम्पल के मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमारा जो टेम्पल है ये मेनली वॉलंटियर से चलता है ना. वॉलंटियर का क्या मतलब होता है, भैया पैसे नहीं मिल रहे हैं, है ना. एंड पैसे नहीं मिल रहे हैं वो तो ठीक है, पैसे ना मिलने के बाद भी स्टैंडर्ड इतना हाई है. जैसे कोई पर्सन, अगर आप डिवोटी उसमें चले गए, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू नॉट आस्क फॉर मनी, बट यू हैव टू कीप द हाई स्टैंडर्ड. और कैसा हाई स्टैंडर्ड, काया मनसा वाचा सबका हाई स्टैंडर्ड. आपके मुंह से अपशब्द नहीं निकले, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का फॉलो करो, कभी गिरो मत, अपनी सारी अपनी भावनाओं को अच्छे तरह से एक्सप्रेस करो, है ना. डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, ठीक है, क्योंकि एवरीबडी इज लुकिंग एट यू. एंड बिकॉज यू आर ए सीनियर, यू आर सीनियर, नॉट इवन सीनियर, यू आर वन ऑफ द डिवोटीज. जब आप बाहर जा रहे हो तो यू शुड एक्ट लाइक ए डिवोटी, लाइक यू नो, नॉट एक्ट लाइक नॉर्मल कर्मी. कि इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है और पैसा कुछ नहीं, तो मुश्किल होती है. तो शिला प्रभुपाद को एक बार पूछा, है ना,
कि शिला प्रभुपाद को वहां पर थे, आई थिंक यूएस में थे कि कहाँ थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा आप तो शिला प्रभुपाद जा रहे थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तो सब लोगों ने बोला कि शिला प्रभुपाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शिला प्रभुपाद बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। फिर कहते हैं यार लेकिन ना इन प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछने हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब उनको मतलब उनको ये नहीं पता है कि कोई गुरु आ रहा है तो उसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, वो क्योंकि अभी उनको पता नहीं इसलिए कोई बात नहीं। तो वो अंदर गए, पहला क्वेश्चन एक लेडी ने क्या पूछा उनसे, शिशिला प्रभुपाद आप कब रिटायर हो रहे हैं। शिशिला प्रभुपाद ने अपने अपने डिसाइपल्स को देखा, बोले ये क्या है, ये क्या क्वेश्चन है। तो उन्होंने उसको पूछा कि शिला प्रभुपाद ने पलट के उनको पूछा कि आप, ये कोई क्वेश्चन है आपका पूछने का, आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो। मतलब मैं ये समय लेके यहाँ पर आया हूँ, मैं मेरे को इतनी सारी जगह जाना है, मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं रिटायरमेंट कब ले रहा हूँ। तो फिर वो लेडी बोलती नहीं 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 शिला प्रभुपाद वी आर, हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं अलग अलग रिलीजियस लीडर्स पे, तो हम पता कर रहे हैं कि कौन कैसे अपना वो जीत जाता है। फिर शिला प्रभुपाद ने बोला तुम्हें पूछना है तो यार कोई ऐसी चीज पूछो जो सारे समाज के लिए अच्छी हो। अब मैं रिटायरमेंट कब ले रहा हूँ, इससे दुनिया का क्या भला होगा मुझे बताओ, है ना। फिर उन्होंने फिर बोले कि नहीं नहीं आई वांट टू नो बिकॉज मेरे को उसमें लिखना है। शिला प्रभुपाद ने बोला मैंने रिटायरमेंट ले लिया इंडिया में, जब मैं इंडिया में था ना मैंने वहीं रिटायरमेंट ले लिया था। अब शिला प्रभुपाद के डिसाइपल को लगा कि उसको कुछ क्लैरिफाई करना चाहिए। उन्होंने बोला शिला व्हाट शिला प्रभुपाद मेंट कि ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम मटेरियल लाइफ। शिला प्रभुपाद से डिड आई आस्क यू टू एक्सप्लेन, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू आई टुक रिटायरमेंट ओवर देयर, है ना। फिर एंड देन शिला प्रभुपाद तुरंत उसके बाद जब वो लेडी सेटिस्फाई होगी उसके बाद शिला प्रभुपाद बोलते हैं बाय द वे देयर इज नो रिटायरमेंट इन भक्ति, नो रिटायरमेंट इन भक्ति, है ना। सो क्योंकि क्या होता है कि रिटायरमेंट कहाँ से होता है, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। भक्ति तब शुरू होती है व्हेन वी स्टॉप एक्सपेक्टिंग। राइट नाउ हमारी भक्ति बहुत ज्यादा मिक्स्ड है। क्यों, हमें क्या चाहिए, हमें दुनिया हमारे आजू बाजू सब कुछ ठीक ठाक चले वो चाहिए, उसके अलावा हमें रुपया पैसा इज्जत सब कुछ चाहिए, उसके अलावा हमें भक्ति भी चाहिए, और उसके अलावा लोग हमारी इज्जत करें वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हम लोगों को। तो इसको कहते हैं मिश्र भक्ति। हमारी भक्ति तब शुरू होगी व्हेन वी डू सेवा फॉर द सेक ऑफ जस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर गुरु महाराज, टू प्लीज आवर गुरु और प्लीज कृष्णा। अगर हम एक्शन उसके लिए कर रहे हैं ओनली देन वी विल स्टार्ट भक्ति। सो एंड वंस यू डू इट देर इज नो रिटायरमेंट, है ना। और इफ वी गेट बेनेडिक्शन सपोज भक्ति भक्ति इफ वी गेट बेनेडिक्शन, जैसे इनको मिला अपने भीष्म देव को मिला इच्छा मृत्यु को, है ना। तो एक बार तीर्थ कौन से वो भक्ति तीर्थ महाराज बताते थे ये बार बार, बोले आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू क्लोज योर आईज, ना, क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट यू आर अबाउट टू डाई राइट नाउ, यू आर अबाउट टू डाई, यू हैव 5 minutes 4 minutes और 3 minutes, है ना। नाउ इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ क्राउड यू वांट अराउंड यू, कौन कौन चाहिए आपको, कैसे कौन सा बंदा चाहिए और किस। अब आपको पता है जिस कॉन्शियसनेस का बंदा वहां होगा आपकी कॉन्शियसनेस वही होगी। इमेजिन आप यू आर अबाउट टू डाई एंड देयर आर पीपल ऐसे करके खड़े होंगे, देन यू लाइक ओ माय गुडनेस, एंड यू इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट गॉड यू थिंकिंग अरे भैया मेरा तो छोड़ो इसको हार्ट अटैक हो जाएगा अभी, है ना। सो आपकी कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन आप किसके सराउंडिंग, आपके आसपास कौन है। तो फिर भक्ति तीर्थ महाराज कहते थे थिंक अबाउट कौन हो क्या आपके आजू बाजू में, किसको कौन चाहिए आपको, ठीक है। और ये सोचो कि उनकी कॉन्शियसनेस क्या क्या होनी चाहिए, वो क्या सोच रहे हो आपको जाते हुए देख रहे हैं सब लोग, ठीक है। और वो आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वाइल इन दैट मोमेंट, है ना। फिर उन्होंने बोला नाउ थिंक अबाउट ये सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, यू आर अबाउट टू लीव, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। यार ये वही बंदा है ना जो प्रसादम सेवा करता था, लेकिन इसकी ना आईब्रोज ऐसी रहती थी जैसे कि कभी किसी किसी ने झापड़ मार दिया उसको, है ना। गुस्से में प्रसाद सर्व करता है, ये वही बंदा है। कोई बोलेगा अरे ये वही बंदा है जो
बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता रहता था, लेकिन किसी दूसरे की उस पर खुश नहीं होता था, किसी दूसरे की प्रगति पे खुश नहीं होता था। ये बड़ा जेलस का इनका बंदा था। क्या क्या व्हाट डू यू थिंक पीपल विल थिंक अबाउट यू? एंड ये सारी चीजें आप लिखो, और लिखने के बाद फिर आप लिखो कि हाउ शुड आई लिव, क्योंकि अब आंख खुल गई आपकी, आपको पता है यू नॉट डाइंग इन 5 मिनट्स। तो आपने जो लिखा है उस पर कॉन्टेम्पलेट करो कि व्हाट इज इट दैट यू वुड वांट टू डू एट द टाइम, बाय फ्रॉम नाउ टिल द टाइम ऑफ डेथ, आप क्या करना चाहते हो, how you should behave, how should you deal with the life, how should you deal with devotees, so that you can actually become what you think। इस पेपर में जो आपने लिखा है, आपको वैसा लोग आपके बारे में सोचें, है ना। यूलॉजी के बारे में काफी सारे जो साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही हो ना, यू शुड राइट अबाउट की व्हाट आपकी खुद की यूलॉजी है। फ्यूनरल चल रहा है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो उनकी स्पीच लिखो आप, और फिर उस स्पीच को पढ़ो और लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट स्पीच। कि आपको अगर लगता है लोग आपकी तारीफ करें, जो भी आपको लगता है आपकी तारीफ होनी चाहिए, उसके बारे में लिख लो। फिर आप पूरी लाइफ उसमें निकालो कि किस तरीके से आई कैन बी दिस पर्सन दैट आई हैव रिटन ऑन दिस पीस ऑफ पेपर। ठीक है। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ये कहते थे। ठीक है। तो फिर शिला प्रभुपाद फिर हाँ, और दूसरा दूसरा बेनेडिक्शन क्या होता है हम लोगों को, जैसे हमारे यूपी में तो बहुत फेमस है, जैसे ही आप किसी के पैर छू, जीते रहो बेटा। अब वो जीते रहो का मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप जीत जाओ, विजयी भव, नहीं नहीं, कहते हैं जीते रहो मतलब कीप लिविंग, है ना। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि आनंद मूवी में, है ना, उन्होंने उसने क्या बोला था, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, है ना। ये भूल जाते हैं हमारे घर वाले। मेरी मम्मी भी हमेशा ये आशीर्वाद देते हैं, बेटा खुश, नहीं नहीं, मम्मी कहती हैं जीते रहो, कभी कहती हैं खुश रहो, फिर अभी कुछ और बोलती हैं खूब तरक्की करो, काफी सारी चीजें ऐसी ऐसी चीजें बोलती रहती हैं। लेकिन नन ऑफ दिस बेनेडिक्शन, कोई बोले ना जीत, हैव अ लॉन्ग लाइफ, चिरंजीवी भव, कई लोग आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी भव। अब यार चिरंजीवी भव, 80 से 85 की एज में लोगों की ऐसी हालत हो जाती है, वो कहता है भैया मेरे को जीवित भव नहीं चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, बहुत हो गया। अब वो कह रहे हैं चिरंजीवी मतलब हमेशा 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 जिंदा रहो। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इट्स नॉट अबाउट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आनंद मूवी का डायलॉग बहुत बहुत ही अमेजिंग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। व्हाट डज दैट मीन? कि शुड वी हैव ए लॉन्ग लाइफ? नोबडी वांट्स टू डाई। ठीक है, नोबडी वांट्स टू डाई, है ना। अब चिरंजीवी, चिरंजीवी कितने लोग आपको पता है? देर आर 8 चिरंजीवी, है ना। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च, विभीषण, कृपः, कृपः, परशुरामश्च, सप्त ऐके चिरंजीविनः, और एक मार्कंडेय ऋषि थे। देर वर 8 पीपल हु आर चिरंजीवी। अश्वत्थामा, ठीक है, वो तो खैर हम लोगों को, सब लोग, अब तो पूरी इंडिया को पता है अश्वत्थामा इज चिरंजीवी बिकॉज ऑफ दैट मूवी। ठीक है, एवरीबडी नोज, है ना। बाकी कुछ पता हो नहीं हो, अश्वत्थामा का क्लैरिटी है। दूसरा है बली महाराज, बली महाराज, एंड तीसरा व्यासदेव जी, ठीक है, और हनुमान जी, है ना, विभीषण चिरंजीवी, कृपाचार्य, परशुराम, एंड मार्कंडेय ऋषि, ठीक है, दे आर चिरंजीवी। चिरंजीव का मतलब ये है कि ये जब तक एनाइलेशन नहीं होगा तब तक दे विल बी स्टिल देयर, है ना। नाउ और जैसे ये तो चिरंजीवी हैं, देर आर पीपल हु आर लाइक लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीते थे, जैसे जामवंत, जामवान जिनको कहते हैं। जामवान वहां उस वक्त जब सॉरी, वामन अवतार जब था, वामन अवतार थे तब भी जामवान थे वहां पर। फिर सेम जामवान वाज देयर व्हेन रामचंद्र जी पुल बना रहे थे, वो भी जामवान थे। और उसके बाद जिनसे कृष्ण जी ने लड़ाई भी करी थी, है ना, कृष्ण लीला में, वो भी जामवान थे। सेम पर्सन, इतनी लंबी उम्र थी कि वो एक युग से दूसरे युग क्रॉस कर रहा है तब भी वो जी रहा है। ठीक है, सो ही हैड दैट दैट बिग ऑफ ए लाइफ टाइम, है ना। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एवरीबडी डाइज, ठीक है, एवरीबडी विल डाई, लेकिन फिर भी नोबडी वांट्स टू डाई। ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट एन अमेजिंग थिंग
इसीलिए भीष्मदेव वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंट. ही हैज इच्छा मृत्यु, बट ही डिडंट वांटेड टू से ओके यू नो व्हाट, यार इच्छा मृत्यु है, एक काम करता हूँ, अर्जुन के पोते को खिलाऊंगा तब जाऊंगा. हमारे में होता है ना कि यार, यार देखो यार, एक काम करता हूँ, पैसा तो बहुत है, लेकिन एक काम करता हूँ, जब तक मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब तक कर लेता हूँ काम. अरे नहीं यार, एक काम करते हैं, वानप्रस्थ लेना है, एक बार बच्चा थोड़े 1-2 साल ना पोते के साथ खेल लूं ना, फिर थोड़े दिन पोते के साथ खेल लिया, यार एक बार इस पोते की शादी कर लूं ना, तब मैं सारी चीजें छुट्टी पाऊं. फिर उसके बाद, नहीं यार एक काम करते हैं, पोते की शादी हो गई है, पड़पोता, यार पड़पोता मतलब पंख लग जाएंगे, मतलब मेरे को स्वर्ग लोक मिलेगा. वो कहते हैं ना पड़पोता का क्या मतलब है, पंख लग जाते हैं, व्हेन यू डाई देन यू विल गो बैक टू हेवनली प्लैनेट विच इज ऑल रबिश बाय द वे. उनको लगा पड़पोता हो जाए, लेकिन एक्चुअली एवरीबडी वांट्स, नोबडी वांट्स टू डाई, एंड द रीजन व्हाई नोबडी वांट्स टू डाई इज बिकॉज आवर सोल इज इटर्नल. है ना, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर सोल इज दैट इट्स इटर्नल. है ना, तो इटर्नल, क्योंकि वो सोल का इटर्नल है, तो हमारी बॉडी में भी वो आता है. हम सोल बॉडी के थ्रू सोच रही है. सो इवन दो वी आर इन अ मोड ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का पर्दा है, फिर भी एक चीज सोल को पता है कि आई नीड टू बी इटर्नल, और उसी का जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन होता है वो आता है यहाँ पर. है ना, सो बिकॉज वी आर इटर्नल, वी वांट टू लिव फॉर एवर. ठीक है. शिला प्रभुपाद बताते हैं, इमली तल का वृंदावन में अभी भी एक इमली तल ट्री है, जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु भी बैठ के चैंटिंग करते थे. है ना, वो 500 साल पुराना है. अब आप अब कोई बोलेगा कि जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, तो ठीक है, आप पेड़ बन जाओ, वुड इट बी फ्रूटफुल. आप सोचो, रादर देन, अब जैसे जो महान महान लोग हुए हैं, जैसे शंकराचार्य थे, शंकराचार्य लिव्ड ओनली फॉर 32 years. है ना, चैतन्य महाप्रभु लिव्ड ओनली फॉर 38 years, और जो इमली तल ट्री है वो 500 years के ऊपर हो गया, अभी भी वहीं पर है. किसकी ज्यादा वैल्यू है, आप बताओ, हु इज मोर वैल्यूएबल? इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू लिव, इट्स अबाउट व्हाट कंट्रीब्यूशन यू मेक. है ना, इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच कंट्रीब्यूशन वी आर मेकिंग, हाउ मच कंट्रीब्यूशन में वी आर मेकिंग. जैसे इसमें ये वाला जो, कैन यू स्टिल सी माय स्क्रीन, है ना, श्रीमद् भागवतम 2:1-12 में बताते हैं, किम प्रमत्त से किम प्रमत्त से बहुभिः बहुभिः परोक्षेहारे नैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटिते श्रेयसे यतः. what is the value of prolonged life which is wasted, inexperienced by years in this world? Better a moment of full consciousness, because that gives one a start in searching after his supreme interest. है ना, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोलॉन्ग लाइफ विच इज वेस्टेड. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. है ना, इसी तरीके से जो प्रोलॉन्ग लाइफ होती है, इट्स नॉट ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. है ना, वो नॉट ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ठीक है, तो now the problem is, why do you want to live long? The intention of living long is okay, but the more important question is why. Why do you want? If you want to live more, why do you want to live more? Srila Prabhupada बोलते थे, when he was 78, I think 77, 78, Srila Prabhupada used to say, I feel really young in bhakti right now, because it was exciting, because he was doing contribution, he knew what contribution he was making. You know, so examples of people who are who lived a really long life but it was useless. One of the thing, not entirely useless, most of the life is useless. They say, for example, Ashwathama. Ashwathama is what? चिरंजीवी. है ना, लेकिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने उनको क्या श्राप दिया था कि आपके पस निकलता रहेगा, पूरा शरीर में बदबू आएगी, ब्लड की और पस की दुर्गंध आएगी.
and you cannot stay at one place. You have to keep moving and keep moving and keep moving and keep moving, है ना. and and your body will be full of diseases. ये भी दिया था. ऐसा नहीं है कि आप ठीक है, आप आपके पास निकल रहा है लेकिन मस्त हो, आपको कुछ कुछ नहीं होगा, आप मस्त मौज में रहोगे, खाने की कोई टेंशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ही विल हैव लॉट ऑफ डिजीजेस. एंड इस देह के साथ यू हैव टू लिव फॉर so many thousands of years. That was the, so what is the point of have living like Ashwathama, है ना. Then the other one was Dhritarashtra. Dhritarashtra was so old, है ना, सारे बच्चे मर गए, है ना, उसके बाद भी वो रह रहे हैं. Then Vidur has to come and say, hey, वो फिर भी नहीं जा रहे थे. He was still okay. Because जब when he was born blind, थोड़े टाइम में उनको लगने लग गया था मैं तो बड़ा भाई हूँ, मैं तो बड़ा हूँ किंगडम का, तो राज मेरे को मिलेगा. लेकिन मैं, वो अंधे थे तो पांडु को मिल गया, है ना. अब वो जो पांडु जब वहां पर चले गए, वन में चले गए अपने फैमिली को लेके, तो फिर धृतराष्ट्र को टेम्परेरली बना दिया गया. अब उन्होंने बोला अब मैं राजा बन गया हूं तो मेरा बेटा बनेगा, पांडु का बेटा क्यों बने, है ना. अब उसके बाद धृतराष्ट्र का अपने बच्चे के प्रति आसक्ति इतनी ज्यादा थी कि ही डिड नॉट रियलाइज कि क्या सही क्या गलत है. एंड ही लिव्ड हिज लाइफ एज इफ लाइक एंड देन विदुरा हैज टू कम. उसके बाद भी सब मर गए, फिर भी वो राजमहल में राजा की जैसे रह रहे हैं. तो उनके जो भाई थे विदुर, वो उन्होंने आके उनको खूब गालियां सुनाई, और गालियां ऐसी सुनाई कि उनका मुंह कट गया उससे. क्या बोला आके कि यार जिस भीम ने तुम्हारे सारे के सारे 100 पुत्र को मारा है, उसका उसका जूठन, उसके उसकी जूठी थाली के अन्न खा खा के तुम जिंदा रह रहे हो. क्या क्या फायदा ऐसा जिंदा रहने का. जब उनका अहंकार को हिलाया उन्होंने, तब जाके उन्होंने सोचा हाँ यार सही कह रहा है. एंड देन धृतराष्ट्र एंड हिज वाइफ, they both to uh, went for self realization in the forest, है ना, उनके साथ, है ना. So that's another thing. Then there is another thing. I mean, देखो हम लोग क्या है, हम लोग, हमारे जो पेरेंट्स है, ठीक है, हम, जरूरी नहीं है हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सब लोगों की, लेकिन जनरली कौन, लॉट ऑफ पीपल दे थिंक ऑफ देयर पेरेंट्स एज बोझ, है ना. कहते हैं औलाद गुस्सा ना हो जाए, है ना, इसलिए बुढ़ा बाप कभी खांसता भी नहीं है, कभी कभी. क्योंकि खांसूंगा तो मेरे बेटे की नींद खुलेगी और वो गुस्सा करेगा मेरे पे, इसलिए मेरे को खांसना भी नहीं है. लाइक दिस इज हाउ ओल्ड सम ऑफ द ओल्ड पीपल आर लिविंग, है ना. खटवांग, खटवांग महाराज के पास उनको बोला था तुम्हारे पास कितनी कितनी वो है, यू हैव ओनली 1 सेकेंड. मैं एक और चीज बताने, एक और चीज वो करने वाला था. हाँ, दूसरा ये वाला, आयता अयात यमास्तस्याम यमः स्वं यमः स्वान्तरायापनः शृण्वतो ध्यायतो विष्णो कुर्वतो भ्रुवतः कथा. Consequently, although his duration of life gradually came to an end, his long life consisting of Manvantara era was not spent in vain, since he ever engaged in hearing, contemplating, writing down and chanting the pastimes of the Lord. So, ये किसकी बात हो रही है, स्वयंभू मनु. स्वयंभू मनु कौन थे, स्वयंभू मनु 72, ये जो युगा साइकिल होती है इसके एक मनु रहता है 72 युगा साइकिल तक. तो ये स्वयंभू मनु जो थे, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 72 युगा की साइकिल, ये अपने जो हैं चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि, ये दे आर नथिंग. स्वयंभू मनु इज फ्रॉम बिफोर एंड ही स्टेड टिल लेटर, है ना, सबसे ज्यादा उम्र उनकी थी. लेकिन इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ, लिव लाइक, अगर आपके पास सपोज है लंबी लाइफ, व्हाट डू, यू लिव इट लाइक दैट. इफ यू हैव अ लाइफ लाइक शीला प्रभुपाद, लिव इट लाइक दैट, है ना. डोंट लिव इट लाइक अश्वत्थामा और धृतराष्ट्र. वी हैव टू लिव लाइफ लाइक शिला प्रभुपाद. अगर आपकी लाइफ छोटी है, यू नो, देन यू शुड लिव लाइक खटवान. किंग कुलशेखरा बोलते हैं इसमें, कृष्णा तदीय पद पंकज पंज पंजरा पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजा हंस प्राण प्रयाण समाये कफावा तपित्तः कंठावरोधना विधौ
स्मरणम कुतश्चे कंठावरोधना कफवात पित्ता। बोले मरने मरने के समय क्या होगा, आपके कंठ में, है ना, आपके कंठ में यू विल बी चोक्ड अप बाय योर कफ, है ना। जब ऐसी ऐसी आएगी कफ वात पित्ता, जब गले गला आपका उसमें कफ भरा होगा तो आप कैसे भगवान का नाम लोगे, है ना। तो किंग कुलशेखर क्या बोल रहे हैं मुकुंद माला स्तोत्र में, हे ओ माय लॉर्ड कृष्णा, आई प्रे दैट द swan of my mind may immediately sink down to the stems of the lotus feet of your lordship and be locked in their network. Otherwise, if we don't do bhakti, this will happen at the time of my final breath, when my throat is choked up with cough. How will it be possible to think about you? And this is for us to contemplate on. अगर हम लोग, है ना, इफ अगर हम लोग भगवान के लोटस फीट में अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एट द टाइम ऑफ द डेथ वी विल नॉट बी एबल टू। आप सोचो, ओलंपिक ने बताया ना, ओलंपिक ओलंपिक के लिए लोग 12-15 साल प्रैक्टिस करते हैं, एक गोल्ड मेडल, और फिर वो हवा हो जाता है। नोबडी नोज अबाउट इट आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years, नोबडी नोज, है ना। यू कैन शो इट टू पीपल बट नोबडी केयर्स वेदर यू हैव गोल्ड मेडल और नॉट आफ्टर सम ईयर्स, है ना। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेडल विच इज टर्मिनेटिंग योर मिजरीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, रिपीटेड लाइफ एंड डेथ की मिजरी को खत्म कर रहा है। हम उस उसके लिए अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, वी हैव टू डू मोर प्रैक्टिस देन ओलंपिक पीपल। We have to take this more seriously than an Olympic athletes take the Olympic gold medal or silver medal or bronze medal or any medal. Or some people are so excited just to participate in Olympic. Don't worry about medals. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट a possession which is so much more than normal, है ना। स्वयंभू मनु कितने 72 युगा साइकिल तक। उद्धव महाराज, उद्धव used to talk about Krishna since he was little. He was cousin of Krishna. Uncle नहीं, Uddhav was an uncle or cousin, can't remember. I think uncle Prabhu, uncle. अंकल, हाँ। सोचो, अंकल थे। he was when Krishna was young, since then he used to think and talk and pastime of Krishna. And वो बुढ़े हो गए, when विदुर महाराज विदुर जी उनको मिले, उन्होंने जैसे ही पूछा कृष्णा के बारे में, तुरंत उन्होंने शुरू कर दिया कृष्णा के बारे में बोलना। And this is how we should live. There is another example of Sampati. हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी प्रभु, उद्धव जी तो फ्रेंड थे, अक्रूर जी उनके अंकल थे ना? हाँ, उद्धव जी उनके फ्रेंड थे, फ्रेंड, यस यू राइट, उद्धव जी उनके फ्रेंड थे। तो आप सोचो कि दिस इज हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू टॉक अबाउट कृष्णा। दिस इज हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। संपत्ति कौन थे पता है? संपत्ति वाज द संपत्ति और जटायु, ये दोनों उड़ के जा रहे थे। दे वर ट्राइंग टू गेट टू सन के ज्यादा क्लोज पहुंच गए, तो उनके संपत्ति के पंख जल गए। नहीं, फेल डाउन और नीचे गिर के, और नीचे गिर गए, एंड देन काफी सालों तक वो वहीं पड़े रहे। somehow he was getting food and everything. उनको बस ये बोला गया था, डोंट वरी अबाउट इट, यू नीड टू वेट फॉर व्हाट, यू नीड टू वेट फॉर भगवान श्री राम विल कम एंड यू हैव टू टेल हिम अबाउट दिस इंसिडेंट दैट विल हैपन। रावण के बारे में बताना, एंड दैट विल बी द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ। जैसे ही उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बताया, अरे रावण इधर से इधर इस तरफ गया है आपकी वाइफ को लेके, है ना, जैसे ही उन्होंने पॉइंट करा, उनके दोनों पंख बिल्कुल पूरे एकदम ठीक हो गए वो, है ना। दिस इज द पावर ऑफ द चैंटिंग द नेम एंड ग्लोरिफिकेशन। दिस इज द पावर ऑफ सर्विंग द होली नेम, सर्विंग द लॉर्ड, है ना। शबरी was exactly like that. She waited and waited and waited, but how did she wait? She had a long life. 64 years तक she was every single day बेर तोड़ती थी, और सेम एंथुजियाज्म से तोड़ती थी कि आ जाएंगे कृष्णा। टाइम 64 टाइम्स 365, इतनी बार उन्होंने बेर तोड़े हैं, और उसी एंथुजियाज्म से तोड़े हैं। हमारे साथ क्या होता है, 2 दिन बीवी ढंग से बात नहीं करती है, तीसरे दिन किसी, यार मेरा कहाँ फंस गया यार, मैं यार कहाँ, यार क्या हो गया यार जिंदगी, है ना, क्या हालत हो गई। लेकिन शबरी जो थी, इट्स अबाउट कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू लिव, इट्स अबाउट व्हाट इज द कॉन्शियसनेस व्हेन यू आर लिविंग, है ना।
देयर वाज दिस कंजूस, है ना, देयर वाज दिस कंजूस मक्खी चूस। ही उसके उसके ना घर में लोग भिखारी आता था भीख मांगने, तो ऐसे करता था, हे हट, उधर जाओ उधर। तो बाजू वाले घर में भेज देता था उनको कि बाजू वाले घर में जाके लो। तो सारे लोग भिखारी आते थे, बाजू वाले घर में जाते थे, और बाजू वाला घर वाला उसको दे देता खाना आना, है ना। तो जब वो उसकी मृत्यु हुई, तो यमराज के वहां पहुंचा, उसको बहुत भूख लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। तो उसने बोला, यमराज जी ये क्या है यार, मेरे को इतनी भूख क्यों लग रही है, मेरे को कुछ खाना मिलेगा? बोले, खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, तुमने उन सारे भिखारियों को कुछ भी नहीं दिया ना, इसलिए तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसने बोला, हाँ यार ये तो है। फिर एकदम से उसकी भूख मिट गई। उसने बोला, अरे अभी तो मेरे को भूख लगी थी, भूख मिट कैसे गई? बोले, क्योंकि तुमने उसको उस तरह पॉइंट कर दिया था ना। तो तुमने क्या करा, उनको कब से क्या खाना तुमने नहीं दिया, लेकिन किसी तरह उन्हें खिला तो दिया तुमने। हमारे साथ भी यही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के भले ही वी आर नॉट डिवोटीज, भले ही हमारे अंदर वो सीरियसनेस नहीं है, भले ही हमारे अंदर वो चीज नहीं है, just because we are going in the right direction, just because we are hanging on to whatever we have, just because we are actually here together sitting in this Bhagavatam class, just because we are actually taking that baby step that Krishna wants us to take, just because we are here right now, just because we are chanting and taking the name of Lord, we will all have the benediction from the Lord, a little bit of favor from the Lord. और उसके कारण it is possible for us to go back home, back to Godhead within this lifetime, provided we follow the four regulative principles and chant minimum of 16 rounds every single day. And every single day we are trying to improve the way we chant. We will definitely go back home, back to Godhead. Okay, so I think we'll stop here. I just wanted to talk about, main theme ये था, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, है ना। Okay, stop here. Anybody has any questions, any comments, anything, anybody want to share any realizations? Oh, I didn't see. Oh, yes. Puja Mataji, we'll talk about Ashwatthama next time. Okay. हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कई बार मेरे दिमाग में आया जब भीष्म पितामह का ये चल रहा था पास्ट टाइम, कि प्रभु ही वाज इन शांत रस, आई थिंक विद लॉर्ड कृष्णा ना, ही वाज इन शांत रस मेलो, which is considered to be the lowest in out of five. I have heard also somewhere ki Shantaras sometimes it's even not counted. So why it was like that? He is so glorious. He was so great devotee when he was in Shantarasa. Yeah, actually, I जो think Prabhuji, ग्रेडेशन, हाँ, I think he was in Dasyaras, I guess. ही वॉज इन दासरक, बस शांतरस उनमें था, शांतरस का एक भाव था उनमें। लेकिन मेनली ही वॉज इन ए दासरस, क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द लॉर्ड थ्रू वीर रस। लेकिन एक्चुअली रिचा माता जी, इट्स एक्चुअली व्हाट हैपेंस है, हम लोग ग्रेडेशन करते हैं रसास की, है ना। हम लोग सोचते हैं दास्य रस, साख्य रस, है ना। और शांत रस एक्चुअली किनका होता है? शांत रस उन उन लोगों का होता है, लाइक देर आर सम पीपल हु आर लाइक वैकुंठा में जो होते हैं ना, वैकुंठा में, हाँ वैकुंठा। प्रभु, आई थिंक आप सही कह रहे हो, मुझे लग रहा है मुझे शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया था। चार कुमार हैं उनका एग्जाम्पल ना शांतरस में। शांत रस, बट they became, शांत रस था उनके पास, but they became devotees. They changed, they changed. तो जो Yes. शांत रस वाले होते हैं उनका, they just want to be with Lord, ठीक है ना, they just want to be with Lord। और उनके साथ क्या है, they don't have a real desire of interacting with the Lord। Whereas जो भीष्म देव थे, he wanted to see Lord really angry at him, he wanted to see his anger, and he wanted to see his anger not because he wanted to satisfy his senses, he wanted to see Bhagwan's anger because he knew that Bhagwan will love this virus, है ना। So he was not in the shantras, but at the same time उनमें ना एक वो था जिसको कहते हैं, he was ready to be used as anything for the service of the Lord। If you want me to be a tree, I will be a tree। ट्रीज क्या होते हैं? शांत रस में आते हैं, लाइक आई डोंट नो इंटरेक्शन, ठीक है, वट एवर कृष्णा वांट्स, ठीक है, बट ही वॉज रेडी टू डू दैट।
है ना. But he's actually rasa. His major rasa was dasya ras. He was actually, and he was always in awe and reverence of Krishna. Whereas if you think of Arjun, Arjun only had awe and reverence after Bhagavad Gita was spoken. उससे पहले तो Arjun used to think of him as a friend. है ना. He knew that he, है ना. So he was in these, he was Sakhya ras, है ना. और I don't know why I was telling you about Arjun. मेरे दिमाग में कुछ आया था, but I forgot now. I wanted to link something, but now it's gone. Sorry. Anyway. Thank you, Yeah. Prabhu. It's clear now. I think I got confused somewhere. I have heard about Bhish Pitama also. Somebody has mentioned maybe, and I got confused. Then Yeah. now I can recollect that Char Kumar, 4 Kumar Char were. Kumar, हाँ, because they were Gyanis, na. Gyanis don't Yeah. want anything. They don't want any reciprocation or anything. They just want to merge in the Lord and all those sort of things. So, but they became devotees as soon as they went. Once they went to Vaikuntha, Tulsi ki खुशबू से they became devotees. Okay. Thank you very much. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. शिल प्रभुपाद की जय. आद्या की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Thank you for your class, Prabhu. हरे Hare कृष्ण. Krishna. हरे कृष्ण. Hare प्रभुपाद. Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण.